Hello students, again your Shikha ma'am is here in front of you with the new topics in food making in plants. In the previous video, we have studied up to the functions of stomata. Today's video, we are going to read about how plants make their food. You all know green plants make their food with the process of photosynthesis. You already read the definition of photosynthesis in the part 1 video. Photosynthesis. Today we know this definition with the help of diagram. In this video, in the previous video, we have read the green plants make their food in the presence of chlorophyll, sunlight by using carbon dioxide and water. So in this process, the plants release oxygen, glucose and water vapors. So this is the plant. You have already read the parts of the plants in class 3. थर्ड में आपने plants के parts तो पढ़े होंगे. In this we read about only the process of photosynthesis. इस वीडियो में हम सिर्फ photosynthesis की process में जो जरूरी है उसी के बारे में read out करेंगे. So these are the leaves and this is the sun. And these are the roots. You have read in third class ना? These are the roots. ये roots means जड़ें. ठीक है? This is the sun, roots. This is shoot and these are the leaves. So plants take water and minerals. Plants takes water and minerals from the roots, and these water and minerals carries to the other parts of the plant through xylem. Now this is CO2, carbon dioxide. During the process of photosynthesis, plants take in carbon dioxide, that is the air, which they get through the stomatas. Means ये कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर है वो प्लांट्स जो लीव्स हैं वो किससे लेते हैं? स्टोमेटा मैंने आपको पहले बताया, द स्मॉल ओपनिंग्स, माइनर ओपनिंग्स अंडर द सरफेस ऑफ द लीफ. जो पत्ते के नीचे छोटे छोटे छेद होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टोमेटास. तो प्लांट जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो स्टोमेटास से लेते हैं. एंड दे ट्रैप्स द सनलाइट, सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन. वो सनलाइट को ट्रैप करते हैं और अपना खाना बनाते हैं. Now photosynthesis. In photosynthesis, this photo means light, and this synthesis means putting together. So the whole photosynthesis is putting together with light. Putting together with light. So in the photosynthesis they take in the carbon dioxide and traps the sunlight and takes water and minerals from the root, and what they release? Oxygen, glucose and water vapor. The food that made by the plant, जो खाना पौधों द्वारा बनाया जाता है उसे कहते हैं ग्लूकोज. क्या कहते हैं? ग्लूकोज. That is the food made by plants. Food made by the plants. This is called glucose. And this glucose is in the form of sugar. और ये जो ग्लूकोज होता है ये किस फॉर्म में होता है? शुगर फॉर्म में. In the form of sugar. So this is the process of photosynthesis. Now we understand this process with the equation also. Sometimes the question arises, write the equation of photosynthesis only. Then you have to write only the equation.
equation of photosynthesis. Equation of photosynthesis. Carbon dioxide, which is known as CO2, that is from air. पौधे किससे लेते हैं, मैंने अभी आपको बताया ना, एयर से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस वाटर इन द, वाटर किससे लेते हैं, फ्रॉम सॉइल, अब ये पानी किससे लेते हैं, सॉइल से. रिलीजेस, पहले किसकी प्रेजेंस में, प्रेजेंस हम लिखेंगे इधर सनलाइट एंड क्लोरोफिल, and they releases the glucose, oxygen plus water vapor. This water vapor they release during the process of transpiration. Stomata release the water vapor. The function of the stomata releases the water vapor during the process of transpiration. This we have read in the functions of stomata. So this is the equation of photosynthesis. After this, how plants use the food made by them. Food made by them. अब जो फूड प्लांट्स बनाते हैं वो खुद के लिए कैसे यूज करते हैं उसे. फर्स्ट वन इज फॉर देयर ग्रोथ, सेकेंड वन इज टू repair new cells, to build new cells and to repair worn out cells. To build new cells and repair worn out. Worn out means जो खराब हो चुके होते हैं, worn out cells. And the third one is to produce new plants. अब for their growth का मतलब क्या होता है कि बढ़ने के लिए, प्लांट्स पौधे बढ़ते हैं ना, फॉर देयर ग्रोथ दे यूज दिस फूड. जैसे हम लोगों को अपनी ग्रोथ के लिए खाना जरूरी होता है, ह्यूमन बीइंग्स को, एनिमल्स को ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है, फूड. ऐसे ही पौधों को भी खाना किसके लिए जरूरी, फॉर देयर ग्रोथ, बढ़ने के लिए. टू बिल्ड न्यू सेल्स, नए सेल्स को बनाने के लिए, और जो खराब हो चुके सेल्स होते हैं, वॉर्न आउट सेल्स मीन्स खराब हो चुके सेल्स, उनकी रिपेयर करने के लिए, उनको सही करने के लिए भी ये फूड वो यूज करते हैं. एंड टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, और नए पौधों को प्रोड्यूस करने के लिए भी ये खाना यूज करते हैं. नाउ देयर आर सम एक्सपेरिमेंट्स. फर्स्ट वन इज yes, there are some experiments. The first one is plants have starch in them. अब हम स्टार्च के लिए experiments, first of all experiments to show, first one is to show starch is present in the leaves. Starch is present in the leaves. पत्तों में स्टार्च होता है. ये हम कैसे शो करते हैं, टेक अ लीफ, first point. Second one is boil it in water. Third one, after boiling it, take out leaf and put it in the
another test tube, put it in the test tube, test tube, दोबारा से लेंगे इसमें टेस्ट, put it in the test tube, मतलब उसे टेस्ट ट्यूब में डालना है, and put some alcohol in it, put some alcohol in the test tube, now place this test tube in a beaker full of with water and boil it. The leaf becomes colorless. After boiling, it becomes colorless. Then take out the leaf and wash it under cold water. Then the last one is, take the leaf in the watch glass, put some iodine solution on it, यहां तक के लिए जो हमने पढ़ा वो क्या था कि सबसे पहले एक पत्ता लेंगे, टेक अ लीफ, बॉयल इट इन वाटर, पानी में उसको बॉयल करना है, उबालना है, टेक आउट द लीफ एंड पुट इट इन द टेस्ट ट्यूब। अब उसी पत्ते को जो हमने बॉयल किया है उसको निकाल लेंगे और एक टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे एंड पुट सम अल्कोहल इन द टेस्ट ट्यूब, और उस टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा अल्कोहल डालेंगे जिसमें वो डिप हो जाए, लीफ, अल्कोहल डालेंगे। फिर इसी टेस्ट ट्यूब को हम एक बीकर में रखेंगे जिसमें पानी होगा, क्योंकि हमने इसको फिर से बॉयल करना है, एंड देन अगेन बॉयल इट, उसे हम बॉयल करेंगे तो लीफ अपना कलर छोड़ देगी, इट बिकम्स कलरलेस। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, पत्ते को बाहर निकालेंगे, ठंडे पानी में वॉश करेंगे और उसे एक वॉच ग्लास में सब ट्रे प्लेट में रखो, ग्लास की होनी चाहिए, प्लेट में रखो एंड पुट सम आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट, कुछ ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन के डालेंगे। नाउ द रिजल्ट कम्स इज द लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक। अब इसका जो हमारा ये सारे एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट निकलेगा वो होगा द लीफ बिकम्स ब्लू ब्लैक, लीफ क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। दैट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट नंबर 1। रिजल्ट, द लीफ becomes blue black. This shows that there is a starch in the leaves. The starch is present in the leaves. This shows that starch is present in the leaves. इससे पता चलता है कि पौधों में स्टार्च होता है। नाउ द अनदर एक्सपेरिमेंट नंबर 2, सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। सनलाइट, सूर्य की रोशनी, सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब दूसरे में हम देखेंगे कि जो सूर्य की रोशनी होती है वो भी पत्तों के लिए बहुत जरूरी होती है अपना खाना बनाने के लिए। तो उसके लिए क्या होगा, हम टेक अ पॉटेड लीफ, एक पत्ते में कोई पौधा लगा है उसके एक लीफ को लेंगे हम जो बड़ा सा होगा, partially cover the leaf
उसके कुछ हिस्से को हम एक ब्लैक स्ट्रिप के साथ विद अ ब्लैक स्ट्रिप के साथ कवर कर देंगे. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ पॉटेड लीफ एंड प्लेस इट इन द रूम फॉर 4 days, 3 or 4 days. एक पॉटेड प्लांट लेंगे, उसको हम 3-4 दिन के लिए रूम के अंदर, जहां पे सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही, उसके अंदर रख देंगे. उससे क्या होगा, जितना भी उसके अंदर स्टार्च है दैट इज यूज्ड अप, वो खत्म हो जाएगा विद इन 3 or 4 days. उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके कुछ हिस्से, एक पत्ता लेकर उसके कुछ हिस्से को हम ब्लैक स्ट्रिप के साथ कवर कर देंगे. एंड देन अगेन put the plant, here you write the plant, not the leaf. You take a potted plant. Now again put the plant under the sunlight. दोबारा से इसे हम 3-4 दिन के बाद दोबारा से इसी पौधे को हम सनलाइट में रख देंगे. तो हम सनलाइट में रखने के बाद अगेन यू स्टार्ट विद द सेम टेस्ट. डू द सेम टेस्ट एज you did for starch presentation. सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करना है जो आपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में किया था. डू द सेम टेस्ट एज यू डिड फॉर द स्टार्च प्रेजेंटेशन इन एक्सपेरिमेंट 1. एक्सपेरिमेंट 1 में जो आपने पहले प्रोसीजर किया था कि उसको पहले बॉयल करना है, फिर उसे एक टेस्ट ट्यूब में लेना है, अल्कोहल डालना है उसमें, उसको फिर से बीकर में बॉयल करना है, एंड देन इट बिकम्स कलरलेस. वॉश इट इन द कोल्ड वाटर एंड पुट इट ऑन द वॉच ग्लास, पुट सम आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट, द कलर बिकम्स ब्लू ब्लैक. इसे जब हम ये सारी प्रोसीजर दोबारा से करेंगे तो इट अगेन बिकम्स अ ब्लू ब्लैक. तो ये दोबारा से इसका ये जो कलर, जो अनकवर्ड पार्ट, what you see, what is its results? The results come, the uncovered means जो कवर नहीं है, uncovered portion of the leaf turns blue black. जिसको हमने पोर्शन को बेटा कवर किया है वो पोर्शन ब्लू ब्लैक कलर का नहीं टर्न होगा. बाकी जितना भी पोर्शन होगा, जो भी प्लांट होगा, वो पौधा ब्लू ब्लैक, वो जो लीफ को हमने जिसमें टेस्ट किया है वो ब्लू ब्लैक का हो जाएगा. जिससे पता चलेगा कि सनलाइट इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस. अब इससे पता चलता है कि सूर्य की रोशनी भी फोटोसिंथेसिस के लिए इट इज वेरी मच नेसेसरी, बहुत जरूरी है. फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है? सनलाइट, सूर्य की रोशनी. नाउ देयर आर सम अनयूजुअल प्लांट्स. अनयूजुअल होते हैं, जो अलग से तरह के दिखने वाले पौधे होते हैं. That plants are called unusual. This portion we will cover in our next video number 3. So thank you so much. Watch this video very carefully.